શ્રી શક્તિ સેવા કેન્દ્ર દ્વારા બાળ ભિક્ષાવૃત્તિની સામે રાજવ્યાપી અભિયાન શરૂ. અંબાજીમાં વંચિત બાળકોના કલ્યાણ માટે કાર્યરત સામાજિક સંસ્થા શ્રી શક્તિ સેવા કેન્દ્રએ 1 મેથી ગુજરાત સ્થાપના દિવસના પ્રસંગે બાળ ભિક્ષા મુક્ત ગુજરાત નામનું રાજવ્યાપી જાગૃતતા અભિયાન શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ અભિયાનનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સહાનુભૂતિ સુધી સીમિત ન રહેતા સમાજમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન લાવવાનો છે, જેમાં ભિક્ષાવૃત્તિમાં સામેલ બાળકો માટે શિક્ષણ અને પુનર્વાસ ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવશે. આ અભિયાનની જાહેરાત ગુરુવારે અમદાવાદમાં વૈષ્ણવ દેવી સર્કલ સ્થિત શ્રી શક્તિ કન્વેન્શન સેન્ટરમાં કરાઈ હતી. આ કાર્યક્રમમાં વિવિધ ક્ષેત્રના મહાનુભાવો અને સામાજિક અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ અભિયાનનો મુખ્ય સંદેશ એ છે કે પ્રત્યેક બાળકને રોડ નહીં પરંતુ ક્લાસરૂમ મળવા જોઈએ. શ્રી શક્તિ સેવા કેન્દ્ર દેશના નાગરિકો વચ્ચે વિવિધ જાગૃત પહેલ દ્વારા બાળકોને ભિક્ષાવૃત્તિથી શિક્ષણ અને સન્માનજનક જીવન તરફ લઈ જવામાં સક્રિય ભૂમિકા નિભાવવા પ્રેરિત કરવાનો ઉદ્દેશ ધરાવે છે. ગુજરાતના 66માં સ્થાપના દિવસે આ અભિયાન અંતર્ગત 66 અગ્રણીઓ કે જેમાં પ્રોફેશનલ્સ, ઉદ્યોગપતિઓ અને સાર્વજનિક જીવન સાથે જોડાયેલા લોકો છે, તેમના 20-30 સેકન્ડના વિડીયો મેસેજ શેર કરાશે. આ મેસેજ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા રજૂ કરાશે, જેનાથી જનતા આ પહેલને ટેકો આપવા તથા સકારાત્મક પરિવર્તનનો હિસ્સો બનવા આહ્વાન કરાશે. આ પ્રસંગે સંસ્થાના સંસ્થાપક શ્રીમતી ઉષા અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે આ અમારા માટે એક આધ્યાત્મિક સફર છે. અમે થોડા બાળકોને મદદ કરવાના એક નાના પ્રયાસથી અમારી પહેલ શરૂ કરી હતી અને જે આજે ઘણા બાળકોને સ્પર્શ કરતું અભિયાન બની ગયું છે. વર્ષો દરમિયાન અમે એવા બાળકોને પણ જોયા છે કે જેઓ રોડ ઉપર ભીખ માંગતા હતા, પરંતુ આજે ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે અને તેમજ સફળ પ્રોફેશનલ અને ખેલાડી બન્યા છે. આ ઉદાહરણ દર્શાવે છે કે જો સમાજ આગળ આવીને જવાબદારી ઉઠાવશે તો પરિવર્તન લાવવું શક્ય છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે અમારું માનવું છે કે બાળકોને શીખવા, આગળ વધવા અને સપના જોવાનો અધિકાર છે. બાળક ભિક્ષા મુક્ત ગુજરાત અભિયાનના માધ્યમ અમે એક સામૂહિક આંદોલનની શરૂઆત કરવા માંગીએ છીએ, જેથી કોઈ પણ બાળક ભીખ માંગવા માટે મજબૂર ના થાય. અમે લોકોને અપીલ કરીએ છીએ કે તેઓ પોતાની ક્ષમતા અનુસાર આ પ્રયાસમાં યોગદાન આપે, ભલે તે શિક્ષણ માટે સહયોગ આપે, જાગૃતતા ફેલાવે કે પછી ભિક્ષાવૃત્તિને રોકવાનો પ્રયાસ કરે. અમારો ઉદ્દેશ ભિક્ષાથી શિક્ષાની દિશામાં બદલાવ લાવવાનો છે. અત્યાર સુધી અમને જે પણ સહયોગ મળ્યો છે તેનાથી અમારો ઉત્સાહ વધ્યો છે. सेवा केंद्र 2011 से कार्यरत है. 2011 से मेरी माता जी श्री उषा अग्रवाल जी ने अंबाजी विस्तार के अंदर में जहाँ से उनका प्रेरणा, उनका इंस्पिरेशन जुड़ा हुआ है, वहाँ से इन बच्चों को आइडेंटिफाई किया. उनको स्किल से लेके एजुकेशन से लेके हेल्थ केयर के अंदर में पहले संपन्न किए और उसके बाद उनकी रोज़गार के लिए काम पूर्ण शुरू किया. कितने बच्चे अभी जुड़े हैं अंबाजी के लिए और आगे कौन कौन सी सिटी में इस तरह का मुहिम चलाएंगे? अंबाजी शहर में जब हमने शुरू किया था मम्मी ने, तब उन्होंने 11 बच्चों से शुरू किया था और वो 2011 की बात है. तब से लेके अब तक में 200 से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं, जिनमें से कुछ बच्चे तो अब जिस 2011 में जुड़े थे वो अब नौकरी उन्हें मिल चुकी है, वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं. आपने जो दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा, अंबाजी में जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, जो हमें खुद इसका अंदाज़ा नहीं था कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, पर 15 साल की मेहनत के बाद जब हमें लगा कि हम एक्चुअली किसी परिवार का जीवन का सोचने का नज़रिया बदलने की अगर मेहनत करें तो बदल सकते हैं. ये सीख के साथ हमें अब लगता है कि ये मुहिम हमें गुजरात के हर राज्य के अंदर में और स्पेसिफिकली गुजरात में जहाँ जहाँ पे देवस्थान है उन जगहों पे हमारा जो ट्रैवल्स था बहुत कठिन था. हम पहले जंगल में रहते थे, लकड़े काटते थे, पत्थर तोड़ते थे और जो केसुरी के फूल होते हैं जो हम बेचते थे, तो हमारा इसमें गुजरान नहीं चलता था. हमें पढ़ाई का मतलब बिल्कुल नहीं पता था. उसके बाद जब हम रोड पे जब ये फूल बेचते थे तो उस समय उधर से तो उन्होंने कहा कि तुम लोग पढ़ाई क्यों नहीं करते? हमने कहा पढ़ाई का मतलब क्या होता है हमें नहीं पता. फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम लोगों को पढ़ा देता हूँ. उन्होंने कहा तुम मेरे साथ आओगे? तो हमने कहा हाँ, हम आपके साथ आएंगे. तो फिर वो हमें उनके साथ ले गए श्री शक्ति संस्था में. इधर श्री शक्ति संस्था में आने के बाद हमें स्पोर्ट्स अकेडमी, बैंड वगैरह जो कार्य होते हैं उनमें प्रगतिशील बनाया. आज मुझे गर्ल्स बैकपाइप बैंड की लीडर बनाया गया है. मैंने पहले सोचा था कि बैकपाइप बैंड क्या होता है, इसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है. मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे लगा कि मैं कैसे करके चालू रखो તમે ચાલू रखो, बंद कराइए. मैंने सोचा कि मैं कैसे करके इस टीम को लीड करूंगी, पर आज जब मैं अपनी टीम को लीड करती हूँ तो मुझे अपने अंदर इतना जोश आता है कि हम हमारे बैंड को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं. खास करके आज भिक्षा नहीं लेकिन शिक्षा के जरिए आप पाइप बैंड बजा रहे हो, और कैसा जुनून और क्या मैसेज जाएगा अन्य के लिए?
जो बैकपैक बैंड, जो आदिवासी गर्ल्स बैकपैक पर बैंड बजाते हैं, जिसके कारण हमारी जैसी कई और लड़कियां या लड़के हो सकते हैं जो पढ़ाई नहीं करते, जो अभी भी उनका अगर कहीं पे भी है नहीं, पर जो अगर कहीं पे भी होंगे वो बच्चे जो अभी भी भिक्षावृत्ति। मेरा नाम तो है उषा, लेकिन परिचय श्री शक्ति सेवा केंद्र है। मैडम, ये जो बच्चों को, ये भीख मांगने वाले बच्चों को पुनर्वास करने में आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? ये आपका सवाल बहुत ही मेरे को खुद को लग रहा है कि किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि ये असाध्य कार्य है, भगीरथी कार्य है और असंभव कार्य है। जब आप किसी ऐसे मुहिम से जुड़ते हैं जहां आपको एक पूरे परिवार को एडॉप्ट करना है, बच्चों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकालना है, तो पहले तो हमें डॉक्यूमेंटेशंस में इनके पास, कईयों के पास में इनके जन्म के दाखले नहीं थे, या बहुत सारी चीज़ों की जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कुछ भी नहीं थे। साथ ही साथ इनके जो माता पिता हैं वो बहुत खुद गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग होते हैं, तो इनको कोई संस्कार नहीं दे पाते। माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं सबके। तो हमने पूरे परिवार को जगह नहीं, जीवन बदलो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ा और हमने पूरे परिवार को शिक्षित करना, आज उनके परिवारों को, बच्चों को इस लायक बनाना कि वो 2 पैसे कमा सके, भिक्षावृत्ति से बाहर आए, और साथ ही साथ हमारे छात्रालय में इन बच्चों को रखना जिससे कि इनका सर्वांगीण विकास हो सके, कि जिस बच्चे में जो क्षमता है उसके अनुरूप, संगीत है तो संगीत सिखाना, वो नृत्य अच्छा करता है तो नृत्य सिखाना, वो बैकपाइपर बैंड अच्छा बजाता है तो बैकपाइपर बैंड में देना। कई हमारे बच्चे मलखम, स्पोर्ट्स में बहुत सारे मेडल, सर्टिफिकेट लेके आए, तो उनकी प्रतिभा के अनुकूल उनको हम उसी तरह का सिखाते हैं सब। खासकर कई शहरों में इस तरह के बच्चे हैं, अहमदाबाद में भी है। आगे का मुहिम क्या रहेगा आपका? देखिए, ये जो मुहिम में हमें सफलता मिली इन बच्चों के द्वारा, आज आपके सामने इन बच्चों ने जो प्रदर्शन किया, तो हमें ऐसा लगा कि ये जो एक भिक्षा नहीं शिक्षा अगर जन जागृति अभियान बन जाए, हर व्यक्ति इस बारे में सोचे और जुड़ जाए, शायद सोचते ही है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी जगह कुछ अच्छा कर ही रहा होता है, लेकिन अगर हम एक अभियान बना दें कि हमारा गुजरात, हमारे धार्मिक स्थल बाल भिक्षावृत्ति मुक्त हो जाए, तो ये संपूर्ण सत्य में परिवर्तित हो सकता है। ये हम ओके, थैंक यू।